Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. Today we are going to continue the chapter 2nd from history, page number 27, support for socialism. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To cooperate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. तो सोशलिज्म का बहुत सपोर्ट स्टार्ट हो गया था इन यूरोप आफ्टर 1870s. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर better living and working conditions. They set up funds to help members in time of distress and demanded a reduction in working hours and the right to vote. सो जो वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मनी में, उन्होंने अपने लिए अलग अलग डिमांड सब रखनी शुरू कर दी थी. जो डिस्ट्रेस था, जो डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम के लिए, कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए. उनका जो वर्किंग आवर्स है उसमें जो टाइमिंग है उसमें कम किया जाना चाहिए और उनके वेजेस भी इंक्रीज़ करने चाहिए. In Germany, this association works closely with the Social Democratic Party (SDP) and helped it to win parliamentary seats. सो इसी के चलते उन्होंने जर्मनी में जो वर्कर की जो एसोसिएशन थी, उन्होंने किसका सपोर्ट किया? SPD की, एंड हेल्प टू इट विन पार्लियामेंट्री सीट. By 1905, socialist and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. सो यूरोप में ऐसे ही धीरे धीरे डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन फॉर्म होने लगी थी इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म. नेक्स्ट इज द रशियन रेवोल्यूशन. द फॉल ऑफ मोनार्ची इन February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution. सो रशियन रेवोल्यूशन का क्यों बोला जाता है, उसका नाम रशियन रेवोल्यूशन क्यों बना? जो मोनार्ची जो रूल था किंग और क्वीन का, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, उसकी फॉल के बाद आफ्टर 1917 अक्टूबर से जो इवेंट स्टार्ट हुए थे उसका नाम क्या दिया गया? रशियन रेवोल्यूशन. द रशियन एम्पायर इन 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched the Pacific and comprised today's Central Asian states. सो जो रशियन एम्पायर था वो धीरे धीरे अब एक्सपैंड कर रहा था इन द एम्पायरशिप ऑफ सार निकोलस टू. नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. At the beginning of the 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. About 85% people of the Russian Empire population earned their living from agriculture. This population was higher than the most European countries. For instance, in France and Germany, the population was between 40% and 50%. सो एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी लास्ट वास्ट जो पॉपुलेशन थी वो किस में इन्वॉल्व थी? उनका ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर. सो 85% पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, और उनकी जो लाइवलीहुड थी, जो ऑक्यूपेशन थी, वो किससे अर्न करते थे? एग्रीकल्चर से ही. Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in 1980s where Russian railway networks were extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled and iron and steel output crippled. सो उस टाइम में इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दी थी. मोस्ट इंडस्ट्रीज वे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. सो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती थी, लेकिन गवर्नमेंट बीच बीच में सुपरविजन करती रहती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ में कि जो वर्कर्स हैं उनको लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क करने को दिया जाए और उनकी वेजेस भी फिक्स्ड हो. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूलर्स
been broken. In craft unit and small workers workshops, the working day was sometimes 15 hours compared to with the 10 to 12 hours in factories. लेकिन जो कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर से जो स्मॉल स्केल वर्कशॉप्स थी वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, 15 आवर्स तक उनको काम करने के लिए बोला जाता था और उसके बदले में जो उन्हें वेजेस दी जाती थी वो भी प्रॉपर नहीं होती थी. Despite division workers did unite to strike work, when they disagreed with employment about dismissal or work conditions, they strike took the frequent in the textile industry during. Okay, so workers को जब ये उनकी लिविंग कंडीशन, वेजेस और वर्किंग आवर्स जब उनके अकॉर्डिंग नहीं थे तो वर्कर्स ने वहाँ पे स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो उनके जो एग्रीमेंट होता था उसके भी वो अग्री नहीं होते थे और उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी कि अब उन्हें इस तरीके से काम नहीं करना है. इन द कंट्री साइड प्रीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोटेबल एंड द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़. ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा ओल्ड फीलिंग बिलीव्स को या ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. सो कंट्री साइड में जो जितने भी प्रीजेंट्स थे वो जो लैंड थी उसको कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जो चर्च की जो लैंड्स थी, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, वो अभी भी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास में ही थी और उनकी लैंड किसी और को, प्रीजेंट्स को नहीं दी जा रही थी कल्टीवेशन के लिए. Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1940. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of the government policies, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. So, रशिया में जब सोशलिज्म स्टार्ट हुआ तो जो वहाँ पे कोई पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, लेकिन जो वर्कर्स पार्टी थी उन्होंने धीरे धीरे स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists, so peasants, not workers, would be main force of the revolution. The Russia could become socialist more quickly than other countries. So Russia में socialism ज़्यादा अच्छे से spread हुआ, ज़्यादा quickly spread हुआ than other countries. The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin thought that it is a repressive society like Tsarist Russian. The party should be disciplined and should control the number of quality of its member. Other thought that the party should be open to all. लेकिन वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि ये सोच रहे थे, जो कुछ वहाँ पे ऐसी पार्टी थी रशिया में जो कुछ ही मेंबर्स के लिए खुली थी, लेकिन वहाँ के लोग ये चाह रहे थे कि वो पार्टी सारे मेंबर्स के लिए ओपन हो जाए और सभी लोग उसमें वोटिंग को एंजॉय कर सकें और इक्वली इलेक्शंस कंडक्ट कर सकें या इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट में खड़े हो सकें. So this is for now, and in our next class we will continue the chapter.